I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. No one should seek their own good, but the good of others. Eat anything sold in the marketplace without raising question of conscience, for the earth is the Lord and everything in it. If an unbeliever invites you to a meal and you want to go, eat whatever is put before you without raising question of conscience. But if someone says to you, this has been offered in sacrifice, then do not eat it, both for the sake of the one who told you and for the sake of conscience. I'm not referring to this other person's conscience. I am referring to the other person's conscience, not yours. For why is my freedom being judged by another's conscience? If I take part in the meal with thanksgiving, why am I denounced because of someone I thank God for? So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Do not cause anyone to stumble, whether Jew, Greek, or the church of God, even as I try to please everyone in every way. For I'm not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Then chapter 11, verse 1. Follow my example as I follow the example of Christ. सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। जो कुछ कसाबों की दुकान पर बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज़ के सबब से कुछ ना पूछो, क्योंकि ज़मीन और उसकी सारी मामूरी खुदावन की है। अगर बेईमानों में से कोई तुम्हारी दावत करे और तुम जाने पर राज़ी हो तो जो कुछ तुम्हारे आगे रखा जाए उसे खाओ और दीनी इम्तियाज़ के सबब से कुछ ना पूछो। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे ये कुर्बानी का गोश्त है तो उस के सबब से जिसने तुम्हें जताया और दीनी इम्तियाज़ के सबब से ना खाओ। दीनी इम्तियाज़ से मेरा मतलब तेरा इम्तियाज़ नहीं बल्कि उस दूसरे का। भला मेरी आज़ादी दूसरे शख्स के इम्तियाज़ से क्यों परखी जाए? अगर मैं शुक्र करके खाता हूँ तो जिस चीज़ पर शुक्र करता हूँ उसके सबब से किस लिए बदनाम किया जाता हूँ? बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम न यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, न यूनानियों के लिए, न खुदा की कलीसिया के लिए। चुनाचे मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फ़ायदा ढूंढता हूँ ताकि वो निजात पाएँ। तुम मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूँ। Let's pray. Father, would you allow your spirit to rest over both this text and us as we look to your word? Please minister to us accordingly. We pray all of this in Jesus' name. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. The title of my sermon today is Living for the Glory of God. मेरे कलाम का जो उन्वान है वो है खुदावन के जलाल के लिए जिंदगी बसर करना। Living for the glory of God. खुदावन के जलाल के लिए जिंदगी बसर करना। Now we are in the middle of studying the first book of Corinthians. हम जो है करंथियों की किताब के मुताला करने के दरमियान में हैं। So we'll go back to that shortly. हम उसके पीछे थोड़ी देर जाएंगे, थोड़ी देर के बाद। But I want to speak introductory thoughts first. सबसे पहले जो है मैं अपना तारफी ख्यालात हैं मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Every person lives for something. और हर कोई जो शख्स है किसी ना किसी चीज़ें के लिए जिंदगी गुजारता है। Some live for success. कुछ जो हैं कामयाबी के लिए जिंदगी गुजारते हैं। Others live for comfort. और कुछ जो हैं वो आराम के लिए जिंदगी गुजारते हैं। Some live for recognition. कुछ जो हैं अपनी पहचान के लिए जिंदगी गुजारते हैं। Wealth or pleasure. और जो खुशी और जो है वो दौलत के लिए जिंदगी गुजारते हैं। But the believer, लेकिन एक ईमानदार, we have a much higher calling. लेकिन हमारी जो बुलाहट है वो उससे भी बड़ी है। Let me say that again. As believers, एक ईमानदार होते हुए we have a much higher calling. हमारी जो बुलाहट है वो इससे बड़ी है। Our calling is live to the glory of God. हमारी बुलाहट ये है कि हम खुदावन के जलाल के लिए जिंदगी बसर करें। We are called to live for the glory of God. हम इसलिए बुलाए गए हैं कि खुदा के जलाल के लिए जिंदगी बसर करें। So let's consider for a moment. और एक लम्हा के लिए सोचिए। What does it mean
mean, the glory of God? कि ये खुदा के जलाल का मतलब क्या है, What does it mean? इसका मतलब क्या है। The Greek word for glory, जो यूनानी जुबान का लफ्ज जो जलाल के लिए है, it's the word doxa. उसको डॉक्सा कहते हैं। It means splendor, इसका मतलब है शानो शौकत, not the sugar that we put in our tea. और ये वो स्प्लेंडर नहीं जो हम चाय में डालते हैं। It means honor. ये है ऑनर, It means, इज्जत। it means praise. इसका मतलब है तारीफ। It means reputation. इसका मतलब है रुतबा। It means excellence इसका मतलब है इज्जत and worth. और इसकी काबिलियत। And so to glorify God, तो खुदा को जलाल देने के लिए it means इसका मतलब है to reveal His greatness ताकि उसके अजीम काम को जाहिर किया जाए, by the way we live. और जिस तरह से जिस तरह से हम जिंदगी It's गुजारते हैं। important that we grab this definition अब ये बड़ा जरूरी है कि हम इस जो तारीफ है इसको समझ सकें, before we go further. इससे पेशतर के हम आगे जाएं। To glorify God, खुदा के नाम को जलाल देने का मतलब it means to reveal His goodness. कि इसका मतलब है कि उसकी जो भलाई है उसको जाहिर करना, That means something of His nature is hidden, और इसका मतलब है कि उसकी जात के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, and it is us who will reveal it. और ये हम हैं जो उसको जाहिर करते हैं। Hence, that becomes glorifying. और ये जो अमल है ये बन जाता है उसके नाम को जलाल देना। Let me put it in another way so we can stay अब together. मैं दूसरी तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इसको समझ You may सकें। have heard both in worship and in reading scripture, आप सुन चुके हो, आपने सुना होगा कि इबादत करना और खुदा का कलाम पढ़ना, we often hear the phrase magnify the Lord. हम अक्सर इन इबादत में कहते हैं खुदा के नाम को बड़ा करना। Now, couldn't we magnify the Lord? क्या हम खुदा को बड़ा कर सकते हैं? We cannot magnify Him. हम उसको बड़ा नहीं कर सकते, But what it really means in essence, लेकिन जो इसका सही मतलब है, it's to draw all attention to Him. इसका मतलब है कि अपनी पूरी तवज्जो उसकी तरफ करना, Let all other things be made small before Him. कि उसके सामने जितनी भी दूसरी चीजें उनको छोटा किया जाए, Hence, He is magnified in our life. क्या ताकि वो हमारी जिंदगी में ऊंचा किया जाए। And so when we say glorify the Lord, और जब हम कहते हैं कि खुदा के नाम को जलाल दो, it doesn't mean we will add more to His glory. इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके जलाल में कुछ और शामिल कर देते It's हैं, not that we will make Him more glorious, और इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे और जलाली बना देते because हैं, He's already infinitely और glorious. वो पहले ही से ला इंतहा तौर पर जलाली है। We are simply displaying the glory that's already within Him. हम सिर्फ जो है उसके जलाल को जाहिर करते हैं। Just as the moon reflects the glory of the sun, उसी तरह से जिस तरह चांद जो है वो सूरज की रोशनी को मुनक्स करता है, so we reflect the glory of God. इस तरह से हम भी उसके जलाल को मुनक्स करते Are we हैं। together so far? क्या हम सब इकट्ठे हैं? It's going to be important to understand this. ये बड़ा जरूरी है कि हम इसको समझें। Come quickly to Hebrews chapter 1 verse 3. मेरे साथ जो है इब्रानियों की किताब उसका 1 बाब और उसकी 3री आयत It says दिखाइए। the Son meaning the Lord Jesus, the Son is the radiance of God's glory. और उसमें लिखा है कि जो बेटा है वो उसकी जलाल का परतो है, And He's the exact representation of His being, और वो उसकी जात का नक्श है, sustaining all things by the power of His और word. वो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता है। This is to say that anyone who sees Jesus, इसका मतलब ये है कि जो कोई खुदावन यीशु मसीह को देखता they है actually see the Father, कि वो जो है वो बाप को देखते हैं, because the Father is revealed in Jesus. क्योंकि बाप जो है वो खुदावन यीशु मसीह में जाहिर होता Are we है। together so क्या far? हम सब इकट्ठे हैं? Jesus is only the one who's reflecting the glory of the Father, और यीशु वो है जो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह का जलाल जाहिर करता है, the Father's glory. सॉरी बाप का जलाल जाहिर करता That's what Jesus is doing. है, और ये जो है यीशु करता है। So 2,000 years ago, 2000 साल पहले when Jesus moved amongst the people, और जब यीशु मसीह लोगों के बीच में फिरता था, as people observed और Jesus, जब लोग यीशु को देखते थे, they saw how God the Father और is. वो इस तरह से देखते थे कि खुदा बाप किस तरह का है, So when they saw Jesus have compassion, और जब वो देखते थे कि यीशु के पास तरस है, it revealed that the Father is वो compassionate. देखते थे कि बाप भी तरस से भरा हुआ है, When they saw Jesus seeking the lost, और वो जब देखते थे कि यीशु खोए हुओं को ढूंढ रहा it है, revealed that God the Father is seeking the lost. और वो देखते थे कि खुदा बाप भी खोए हुओं को ढूंढता When है।
Jesus calmed the storm, जब यीशु ने तूफान को थमा it दिया, revealed that the Father is all powerful. और ये भी वो ये जाहिर करता था कि खुदा बाप सारी कुदरत And रखता so है। through the life of Jesus, यीशु मसीह की सारी जिंदगी के through वसीला the, से, through the person of Jesus, यीशु मसीह की शख्सी जिंदगी through के the वसीला, character of यीशु Jesus, मसीह के किरदार की वसीला the से, Father was being revealed. यीशु हमेशा खुदा बाप जो है वो जाहिर किया गया। This is what it means to give glory to the Father. और खुदा के नाम को जलाल देने का यही मतलब है। Now, I'm intentionally only using this definition. मैं जो है इसको जानबूझकर मैं इसको जो थैंक यू जानबूझकर मैं इसको इस मिसाल को I mean, इस्तेमाल कर रहा हूं। there are many other definitions that if we started, we would be here for days. और जो अगर बहुत सारी और भी ऐसी डेफिनेशंस अगर मैं उनको आगाज करूंगा तो हम सारा दिन यहीं पर रहेंगे। But what I'm focusing on is that the glory of God is that which is revealed through us. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि खुदा का जलाल वो है जो हम पर जाहिर किया गया है। This is the same thing that Jesus did. यीशु मसीह ने यही वो काम है Now, जो किया। before Jesus was arrested, इससे पहले कि यीशु को गिरफ्तार किया जाता, this is the prayer that Jesus had. यीशु मसीह ने ये दुआ की। In John chapter 17 verse 4, और यूहन्ना 17 बाब की 4 आयत में, he said, I have brought you glory on earth ऐ बाप मैंने तेरा जलाल जमीन पर जाहिर किया है, by finishing the work that you gave me to do. और उस काम को तमाम करके जो तूने मुझे दिया He था। said, I brought your glory to the earth. वो कहता है कि मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। That means I revealed to them the glory that is in you, Lord. और इसका मतलब ये है कि बाप वो जलाल जो तुझ में है मैंने जाहिर किया। In John 14 verse 9, यूहन्ना 14 बाब की 9 आयत में लिखा है, Jesus says, anyone who sees me, और यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा he has seen the Father. उसने बाप को देखा, Because I am the representation. क्योंकि मैं बाप का नुमाइंदा हूं। I am the one that if you see me, you have seen the Father. मैं वो हूं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। I am the one who is unveiling who the Father is. मैं वो हूं जो बाप के सामने से उस पर्दे को हटा रहा हूं कि बाप कौन सा है। Hence giving glory to the Father. बाप को जलाल देते हुए। Are we together? क्या हम सब So if इकट्ठे you हैं? take every one of these verses अगर आप ये सारी आयतों में से लें and you just take the word glory and put the word unveil, it would still work. और अगर आप सिर्फ जो है वो जलाल को और किसी चीज को जो जाहिर करने के लें तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। Are we together? क्या हम सब इकट्ठे हैं? Now, just as Jesus' life, जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी his थी, character, उसका किरदार, his sacrifice, उसकी कुर्बानी, it reveals the Father. वो खुदा बाप को जाहिर करता है। Our lives, और वो just like Jesus' life, जैसे खुदावंद यीशु मसीह की his जिंदगी, sacrifice उसकी कुर्बानी, reveals the Father, वो खुदा बाप को जाहिर करती है। our life, हमारी जिंदगी, and as we imitate Jesus, और जैसे हम खुदावंद यीशु मसीह को नकल करते it हैं, also reveals the Father to the world. और वो इसी तरह जो है वो खुदा बाप को दुनिया पर जाहिर It's going to करते हैं। come together very soon. और ये जो है बहुत जल्द हम इकट्ठे करेंगे इस चीज़ को। When we live a life जब हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे that is identical to Christ, जो मसीह यीशु के मुशाबे है, the Father is revealed to the world. और उसमें जो है खुदा बाप दुनिया पर This जाहिर is what होता है। Jesus said जिससे यही बात यीशु ने in कही। Matthew chapter 5 and verse 16. मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 16वीं आयत He में said, let your light shine before others कि तुम so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. तुम्हारा नूर आदमियों के सामने चमके जाके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर खुदा बाप को जलाल दें जो आसमान पर है। So when people see you being honest, जब लोग आपको देखेंगे कि आप ईमानदार it हैं, reveals to them ये उन पर जाहिर करेगा that the Father is trustworthy. कि खुदा बाप जो है वो काबिल तब भरोसा है। I hope it's coming together. मुझे उम्मीद है कि हम सब इकट्ठे इस तरफ आ रहे You हैं। know, many people, they don't trust God. बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा पर भरोसा नहीं रखते। It's not because God did something to break their trust. और ये ऐसा नहीं कि खुदा ने कुछ ऐसा किया है कि उनका एतमाद और भरोसा तोड़ It's दिया है। because something someone else has done. वो उसकी वजह ये है कि किसी और ने कुछ किया है, And because of what they have done, और इस वजह से जो दूसरों ने किया है they have also lost trust in the Father. वो इसी वजह से वो खुदा बाप पर भी एतमाद रखना छोड़ गए हैं। You see how it makes sense when you think about it in the negative. और आप इसको ये आपको समझ आएगी जब इसको आप थोड़ा मनफी
तर्ज में So सोचें। I don't think God is trustworthy. मैं नहीं समझता कि खुदा जो है काबिल भरोसा है। And you ask them why. मैं अब पूछेंगे क्यों? And they'll say, oh, because so and so did this. क्योंकि मैं वो कहेगा कि ऐसे फलां फलां शख्स ने ये किया है। And in the same way, और इसी तरह से when we are trustworthy, जब हम जो है काबिल we भरोसा look to the Father and say, man, the Father is trustworthy. और जब वो हमारी तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि ओ That's खुदा just an बाप जो है काबिल भरोसा है। illustration to make point of what Jesus said. ये एक तमसील है जो मैंने आपके सामने रखी है कि खुदा बाप कैसा है। That's what Jesus is saying. He says, when people will see your good works, और इसी तरह खुदा यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जब लोग आपके नेक कामों को देखेंगे, you're revealing to them who the Father is. आप उन पर जाहिर कर रहे हैं कि खुदा बाप कौन When है। you're walking in integrity, और जब आप एक खालिस नीयत से चल you're रहे हैं, revealing to them who the Father is. आप उन पर जाहिर कर रहे हैं कि When खुदा you're बाप कौन walking है। in compassion, जब आप तरस में चल रहे हैं, you're revealing to them that the Father is आप उन पर compassionate. जाहिर कर रहे हैं कि खुदा बाप तरस से भरा हुआ है। Amen. आमीन। Now coming back to our passage. अब हम जो है अपने उसी पैसेज की Verse तरफ आएं। 31 reads, और जो है 31वीं आयत में लिखा it है, says, whatever you do, तुम जो भी करो do it for the glory of God. और वो सब खुदा के जलाल के लिए Even करो। if we take just this particular verse, अगर हम सिर्फ इसी आयत को ही ले लें we take this phrase, we can build our life on it. और हम इस जुमले को ले लें तो इस पे अपनी जिंदगी बना सकते Do हैं all things for the glory of God. कि सब कुछ जो है खुदा के जलाल के लिए And करो। surely we all want to do things to glorify God. और यकीनन हम सब करना खुदा के जलाल के लिए कुछ करना चाहते हैं। So some can say, well, I sing for the glory of God. कुछ कह सकता है कि मैं जो गाना गाता हूं तो खुदा गीत गाता हूं तो खुदा के जलाल के लिए Because गाता हूं। God is revealed through my song and expression. क्योंकि जब मैं गीत गाता हूं तो खुदा उसमें जाहिर होता है। Others can say, well, I share messages about God. और कुछ कह सकता है कि मैं जो है खुदा के बारे में पैगाम And, देता हूं। and the Father is revealed through my messages. और जो है खुदा उन पैगाम में जाहिर होता And है। I do this and I do that so I can glorify God. मैं ये करता हूं वो करता हूं इस तरह से खुदा के नाम को जला देता हूं। But here in the context of 1 Corinthians, लेकिन इस जो है एक जो पहले करंथियों के पस मंजर में giving God glory is a little different. लेकिन खुदा को जलाल देना यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ It's है। more than just singing a song. ये जरा जो है वो गीत गाने से थोड़ा आगे है। It's more than just preaching. ये जो है मनादी से भी थोड़ा आगे है। It's doing something sacrificially. ये है कुछ ऐसा करना जो कुर्बानी की तरह The किया जाए। giving glory of God in this context, इस जो पस मंजर में जो है खुदा के नाम को जलाल देना, it means sacrificing something we feel we have the right to do. और ये वो है किसी ऐसी चीज को कुर्बान करना जिसके बारे में आप समझते हैं कि ये मैं हक रखता हूं करने का। And if I sacrifice it, अगर मैं इसको कुर्बान कर दूंगा, that is giving glory to God. ये जो है खुदा के नाम को जलाल देगा। Amen. आमीन। We want to give God glory in other things. हम दूसरी बातों में खुदा के नाम को जलाल देना I चाहते हैं। want to give glory to God through my song. अब मैं खुदा के नाम को जो है वो गीत गाने के वसीला से I जलाल देता want to हूं। give glory to God through my shout. मैं जो है अपने चिल्लाने के वसीला से खुदा के नाम को I जलाल want देना to give चाहता glory to God through my service. हूं। मैं जो है अपनी खिदमत के वसीला से खुदा के नाम को जलाल But देना here चाहता in 1 Corinthians, हूं। लेकिन यहाँ जो पहला करंथियों के अंदर Paul is saying, पालूस रसूल कहता है, we are giving God the glory हम खुदा के नाम को जलाल if देते we are हैं denying the things we feel we have the right to. अगर हम उन चीजों का इनकार करें जिनके बारे में हम समझते हैं कि हम इसको करने का हक That's a रखते हैं। hard ask. ये जो है बहुत मुश्किल काम है। Here, God is giving us the model और यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह हमें नमूना देते हैं in which we ought to give Him glory. और जिस तरह हमें किस तरह से उसके नाम को जलाल We देना may चाहिए। have a list of things we feel we can give God glory और हमारे through. पास हो सकता है हमारी एक लिस्ट हो कि हमें इस तरह से खुदा के नाम को जलाल देना है। But God laid it out for us right here in His passage. और लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़ी वाज़ह तौर पर लिखा है That lovingly sacrificing something कि मोहब्बत से ऐसी कुर्बानी देना for another, दूसरे के लिए, that is giving God glory. ये है खुदा के नाम Let को that इज्जत settle in a little. करना। खुदावन हमारी जिंदगियों में इसको बैठने दे। Let that settle into your hearts right now. ये आपके दिलों में घर करे। Sacrificing something ऐसी कुर्बानी for the sake of another जो दूसरों के लिए की जाए, is giving God glory. ये खुदा के नाम को जलाल देना है। Let me say it again. मुझे दोबारा कहने दीजिए। Sacrificing something कुछ ऐसा कुर्बान करना for the sake of another, दूसरों की खातिर, that is giving God glory. ये खुदा बाप को जलाल देता है। If I sacrifice something for my brother,
अगर मैं अपने भाई के लिए कुछ कुर्बान करूं, that is giving God glory. ये खुदा के नाम को इज्जत और If I जलाल है। sacrifice for my spouse, अगर मैं अपनी बीवी के लिए कुछ कुर्बान करूं, that is giving God glory. ये खुदा के नाम को If I इज्जत और जलाल है। sacrifice for my children, अगर मैं कुछ अपने बच्चों के लिए कुर्बान that करूं, is giving God ये glory. खुदा के नाम को जलाल See, देता है। sometimes we think that giving God glory is something we do directly to God. और बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि खुदा के नाम को जलाल देना सिर्फ यही है कि हम बराह रास्त खुदा के नाम को Just इज्जत और जलाल directly me and God kind of thing. सिर्फ यह है बराह रास्त मैं और खुदा हूं। And sacrifice is included in this, लेकिन इसमें जो है कुर्बानी शामिल है, especially towards one another. जो कुर्बानी जो शामिल है वो एक दूसरे के And साथ in the मोहब्बत में। context of 1 Corinthians 10, जो पहले करंथियों 10 बाब के पस मंजर में, it's about sacrificing to for fellow believers. और ये वो कुर्बानी है जो गैर ईमानदारों के लिए कुर्बानी देना। And so for the last 2 chapters, जो पिछले 2 बाब हैं, Paul has been kind of pounding the Corinthians on this. और पालूस रसूल जो है बार-बार जो है इस चीज की उनके दिल में डाल रहा He's है। saying, yes, you have liberty. और वो कहता है हाँ तुम्हारे पास आजादी Yes, है, you have freedom. हाँ आपके पास जो है वो इख्तियार है, But your freedom has to be dealt with carefully. लेकिन आपकी आजादी जो है उसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल होने की जरूरत है। Chapter 10 is the closing of his defense. और ये जो है जो 10वां बाब है उसके दिफा का आखिरी बाब And है। he says, whatever you do, वो कहता है आप जो कुछ भी करते हैं, do it for the glory of वो God. कहता है जो कुछ भी करते हैं वो खुदा के जलाल के लिए This is करें। to say that we should be asking ourselves continually, और ये वो जुमला है जो मैं बार-बार अपने आप से पूछने की should जरूरत I है, do this? क्या ये मैं कर रहा हूँ, Is it acceptable? क्या ये काबिल कबूल Is है, it sinful? क्या ये इसमें गुनाह है, Is it beneficial? क्या ये फायदामंद है, Will this decision bring glory to क्या God? ये फैसला जो है खुदा के नाम को इज्जत और जलाल Now, देगा। again, in the context, इस जो सारे पस मंजर में, he's talking about sacrificed meat. और वो जो है वो कुर्बानी के गोश्त के बारे में बात कर रहा है। It was like, at the regular meat shop, और वो जो है आप जो है जो आम जो गोश्त की you दुकानें can हैं, go and you can just buy some meat. आप वहां से जाकर अपना गोश्त खरीद सकते हैं। But really, before they would bring the meat to the market, लेकिन इससे पहले वो जब जो है गोश्त बाजार में लेकर आते थे, they would sacrifice it to an idol. वो जो है पहले जो है वो जो है एक बुत के सामने उसे कुर्बान करते Now, थे। some of the people in the church, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कलीसिया के अंदर, they would say, idols are nothing, I'm free to eat it. और वो समझते थे कि बुत कुछ नहीं है, मैं आजाद हूं इसको खाने के लिए। But others were kind of tender in their spirit, लेकिन कुछ जो है वो अपनी जो रूह में नरम थे, and they would say, no, if I eat it, like my salvation will go away or और something. वो कहते थे कि अगर मैं इसको खाऊंगा तो मेरी निजात या कुछ ऐसा And so कुछ हो Paul सकता is saying, है। listen, we need to balance this out. लेकिन पालूस कहता है सुने हमें इस चीज को He मतवाज़ said, yeah, on one hand, you do have the freedom. उसने कहा कि एक तरफ आपके पास आजादी है, But on the other end, you have to be careful not to become a stumbling block. लेकिन दूसरी तरफ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप किसी के लिए ठोकर का बायस In ना other बनें। words, Christian liberty does not mean you can go ahead and be selfish. और इसका मसीही आजादी का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो खुद गर्ज हो Like, जाएं। I'm free in the Lord, I'll do whatever I want. मैं जो है मसीह में आजाद हूं, मैं जो चाहूं I'll कर say सकता whatever I हूं, want. मैं जो भी कहूंगा कुछ As भी कह long as it सकता feels good to me. हूं। जहां तक ये मुझे अच्छा महसूस It's होता just है, about me. और ये जब सब कुछ मेरे And बारे Paul is like, no, it's not. पालूस रसूल कहता है नहीं ऐसा He नहीं है। said, for the sake of the gospel, वो कहता है कि अंजील की we ought to खातिर be able to sacrifice those things. हमें इन चीजों की कुर्बानी देने की He जरूरत said, है। I will go to the extent of becoming a servant again. मैं जो है वो कहता है कि मैं इस हद तक पर जाने की मैं तैयार हूं कि मैं सबका खादिम बनूं, Because I want to save them for the क्योंकि gospel. मैं चाहता हूं कि वो अंजील की खातिर बचाए जाएं। That's hard, even in today's time. ये बहुत मुश्किल है आज के दौर में। I भी still deal with this, मैं अभी तक इस चीज not के on a साथ personal सामना level, मैं जाती तौर पर नहीं, but in the church. लेकिन कलीसिया में। There's some who are very fixed on, you cannot do this. और जो कुछ जो है वो बड़े इस चीज पर कायल हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। And I said, if we cannot, then when I come to your house, I will not. जब मैं आपके घर आऊंगा तो ऐसा नहीं करूंगा। And others are like, hey, we're free to do it. और वो कुछ कहते हैं कि जब आप हमारे घर में आएंगे तो कुछ भी आप करें। But even though I am at liberty, जब मेरे पास आजादी है, I will not take part in it
मैं जो है उसमें शामिल नहीं होऊंगा, because of the conscience of others. लेकिन जो है दूसरों के इम्तियाज की वजह से, दीनी इम्तियाज। Now, if you want to learn more on this, अगर आप इस पे और सीखना चाहते हैं, you can go back to our YouTube channel and watch the last 2 chapters we studied. और आप YouTube चैनल पे जा सकते हैं और पिछले 2 जो पैगाम हैं उनको सुन सकते हैं। But I want to talk about the principle of living for God's glory. मैं आज जो है वो उन असूलों के बारे में बयान करना चाहता हूँ जो खुदा के जलाल के लिए So if you're जिंदगी गुजारने taking में मदद notes, करते हैं। let's get started. अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। Number 1, God's glory is greater than my personal freedom. और जो सबसे पहली बात है कि जो है खुदा का जलाल जो है वो मेरी शख्सी आज़ादी से बढ़कर है। Verse 23 and 24, he says, I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. 23वीं और 24वीं आयत में कहता है सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। Yeah, you do. हाँ, आप कर सकते हैं, But is it beneficial? क्या ये फ़ायदामंद है? God's glory is greater than my personal freedom. खुदा का जलाल जो है मेरी शख्सी आज़ादी से बड़ा है। All things are lawful, सारी चीज़ें रवा तो हैं, but not all things are helpful. लेकिन सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। And so you may ask yourself, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, what I'm doing, is it beneficial? क्या जो मैं कर रहा हूँ कि ये फ़ायदामंद है? Anything that you feel you are at liberty to. आप किसी भी चीज़ के बारे में आप समझते हैं आपको आज़ादी है। And let's be honest, in the church there are debates that still exist. और ये ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहस जो है कलीसिया में अभी तक Should है। we drink or should we not drink? हमें पीना चाहिए या नहीं पीना I'm not चाहिए? talking about lassi or sequenji. मैं जो है लस्सी और शिकंजवी के बारे में बात नहीं कर रहा। The hard question, should we drink alcohol? जो मुश्किल सवाल है, क्या मुझे शराब पीनी चाहिए? Now, we can go into debates left and right on this. अब हम जो है इस बहस पर हम जो है वो बहस कर सकते But let's get to this, that the glory of God हैं, लेकिन आप इस बात को सामने is रखें greater than my own freedom. कि खुदा का जलाल जो है वो मेरी शख्सी And आज़ादी से so बड़ा I है। can ask myself, is this beneficial? मैं अपने आप से ये पूछ सकता हूँ, क्या ये फायदेमंद है? Does it build up others? क्या ये दूसरों को तामीर करती है? Does it honor Christ? क्या ये मसीह की ताजीम करती है? Or does it help someone spiritually? क्या ये रूहानी तौर पर किसी की मदद Now, करती if any of those is no, है? अगर ये सारी चीजें इनमें से एक भी चीज ना है, then Paul is saying, be willing to lay it down. और पालूस रसूल कहता है तो फिर उसको मत करें। If any of these things, कि इनमें से कोई भी चीज, we hear this, should we listen to secular music? क्या हमें जो है वो जो है सेकुलर म्यूजिक को सुनना चाहिए? I get that question probably more than I get about drinking. और जो शराब से ज्यादा ये सवाल मेरे से किया जाता है, Like, can we listen to, Sufi kalam and things like that? क्या हम जो है सूफी जो म्यूजिक है उसको सुन सकते हैं? And the questions are still the same. लेकिन जो सवाल है वो सेम है। Is it beneficial to my soul? क्या ये मेरी रूह के लिए फायदेमंद Is है? it beneficial to build up others? क्या ये दूसरों को तामीर करने के लिए Does है? this honor Christ? क्या ये यीशु की ताजीम करती है? Does it help someone spiritually? क्या यह किसी की रूहानी If मदद any करती one of those answers is है? no, अगर इनमें से कोई भी जवाब नहीं है, then Paul is saying, lay it down. और पालूस फिर कहता है उसको छोड़ दो, Not for your own conscience, लेकिन अपने ज़मीर के लिए नहीं, but for the conscience of others. दूसरों की खातिर, Because the glory of God क्योंकि खुदा का जलाल, is greater than my personal freedom. क्योंकि उसका जलाल मेरी शख्सी आज़ादी से Are we बड़ा है। together so क्या far? हम सब इकट्ठे You know, when folks start getting into that defense mode, हैं? जब हम जो है अपने आप अपना जो दिफा करना शुरू well, करते technically, हैं, हम कहते हैं नहीं, तकनीकी तौर पर more verses allow it than the ones that don't. जो है ज्यादा जो आयतें हैं वो इसलिए कि आप कर सकते हैं बनिस्बत के जहां नहीं लिखा Then हुआ है। the fact is this, लेकिन जो हकीकत है that you are fighting more for your freedom कि आप जो है अपनी जो है आजादी के लिए जंग कर रहे than the glory of God. हैं, खुद और ना कि खुदा के जलाल के लिए। Are we together so far? क्या हम सब इकट्ठे हैं? Paul continues and says, let no one seek his own good, और पालूस इसको जारी रखता है और कहता है कि कोई भी अपना फायदा ना but the ढूंढे, good of their neighbor. ताकि अपने जो है पड़ोसी का फायदा Listen, देखे। Christian maturity is measured not by how many rights we demand, और जो मसीही बलूगत है उसका इनसार इस तरह पे इस बात पर नहीं कि हमारे इख्तियार कितने हैं, it's about how many are we willing to surrender. और वो इस बात पर है कि हम अपने कितने इख्तियार को खुदावन के सामने रखने के लिए तैयार हैं। Come on, somebody say amen. कोई तो कहे आमीन। That's Christian maturity. ये जो है मसीही बलूगत है। I'm willing to lay down what I think are my rights. मैं उसको मसीह की खातर उसको जो मैं हक समझता हूँ उसको छोड़ने के लिए The तैयार हूँ। second thing, जो दूसरी बात है, God's glory is seen जो खुदा का जलाल जिसमें जाहिर होता through है sacrificial love. वो है
जो ऐसी मोहब्बत जिसमें कुर्बानी हो। God's glory खुदा का जलाल is seen देखा जा सकता है in sacrificial love. जो ऐसी मोहब्बत में जिसमें कुर्बानी I शामिल है। listed all of the verses we can get from 1 Corinthians 10, और मैंने वो सारी आयतों लिखी हैं जो हम पहला करंथियों 10 बाब में देख सकते हैं। but man, sacrificial love, जो कुर्बानी वाली मोहब्बत है that is something else. ये बहुत मुख्तलिफ है। Sacrificial love reflects the character of God. जो कुर्बानी की मोहब्बत है वो खुदा के किरदार को जाहिर करती God is love, है। खुदा मोहब्बत है and He demonstrated what love is. और उसने जाहिर किया है कि मोहब्बत क्या है। In John 3:16, when He gave His only Son. और यूहन्ना 3:16 में उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। In Romans 5:8, it says He demonstrated His love that while we were yet sinners, Christ died for us. रोमियो 5 बाब की 8 आयत में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। When believers willingly sacrifice their comfort, जब ईमानदार जो है वो अपनी मर्जी से अपने आराम को देने के लिए when they तैयार है willingly sacrifice their time, और वो अपनी मर्जी से अपने वक्त को देने के their लिए तैयार है, resources, अपने जराए को and the rights that they have, और उन सारे इख्तियार को, they are mirroring the heart of God. वो जो है खुदा के जो है वो दिल का अक्स है। How we love giving glory to God. और हम जो है कितनी मोहब्बत करते हैं खुदा के नाम को जलाल देने That's के more than just loud sound, church. लिए। ये जो है वो ऊंचा गाने से बढ़कर है। It's about sacrificial love. ये है ऐसी मोहब्बत जिसमें कुर्बानी हो। Because when we sacrificially love another, जब हम जो है एक दूसरे के साथ ऐसी मोहब्बत करेंगे जिसमें कुर्बानी हो, that's when the glory of God is revealed. फिर जो है वो खुदा का जलाल है। Sacrificial love displays the gospel. जो मोहब्बत जिसमें कुर्बानी हो वो अंजील की बशारत है। Ephesians 5:2 says this. इफिसियों 5 बाब में लिखा है It says, walk in love, कि वो कहता है कि मोहब्बत में चलो just as Christ loved us जिस तरह मसीह ने हमसे मोहब्बत and रखी gave himself for us. और अपने आप को खुशबू की मानत दे दिया। Every act of selfless love, और हर जो है वो ना खुदगर्जी की it tells मोहब्बत the story of Jesus. वो यीशु मसीह के बारे में बताती है। Amen. आमीन। Third, sacrificial love joins me to God's purpose. और जो ऐसी मोहब्बत जिसमें कुर्बानी है वो मुझे खुदा के मकसद के साथ जोड़ देता है। Paul concludes 1 Corinthians 10 this way. और जो पालूस जो है वो इस तरह से 10वें बाब का इख्तिताम करता In है। verse 33, he says, I try to please everyone in everything I do. और वो कहता है चुनाचे मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ। That means I sacrifice all I got. कि वो कहता है कि मैं वो सब कुछ कुर्बान करता हूँ जो मेरे पास है। Because you know how hard it is to please others? क्या आपको पता है कि कितना मुश्किल है किसी को खुश करना? And Paul's like, look, I try to please everyone. वो कहता है कि मैंने जो है हर किसी को खुश करने के लिए सब कुछ What he's saying is, I sacrifice all the things that I want. और वो कहता है कि मैंने उन सारी चीजों को कुर्बान कर दिया है जिनको मैं चाहता था। For what? It says, not seeking my own advantage, किसके लिए? इसलिए नहीं कि मैं अपनी बेहतरी चाहता but that many, ताकि many may be saved. ताकि बहुतों को बचा सकूं। The cost of sharing the gospel is our own sacrifices. बशारत की खुशखबरी देना अपने आप को कुर्बान करना है। To putting our own desires down. अपनी जो है ख्वाहिशों को मसीह के सामने रख And देना। when we're willing to love that way, और when we're willing to love that way, और हम जो है इस तरह से इससे मोहब्बत करना पसंद करते हैं। that we're willing to sacrifice it all, हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी से कुर्बान हों। then we are joined to the purpose of फिर God. हम खुदा के उस मकसद के There साथ are जुड़ many जाते हैं। believers who are just walking, sojourning through this earth, और जो है बहुत सारे जो मसीही हैं इस सफर में शामिल हैं, but they don't know what the purpose of God is. लेकिन वो नहीं जानते कि खुदा का मकसद They क्या don't know what God's purpose is for their life, है। और वो नहीं जानते कि खुदा का मकसद उनकी what जिंदगी के लिए God's क्या है। purpose is for their family, खुदा का मकसद उनके खानदान के लिए what क्या है, God's purpose is for this world. और खुदा का मकसद इस दुनिया के But लिए क्या loved ones, है। when we get on track जब अजीजों हम ट्रैक पर होते हैं and we understand what sacrificial love is, और हम जानते हैं कि मोहब्बत जो
कुर्बानी जो मांगती है उसको we जानते हैं, begin to slowly join ourselves to the purpose of और God. आहिस्ता आहिस्ता जो है खुदा के मकसद के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। If there's no sacrifice, अगर इसमें कुर्बानी नहीं, then there's no love that God wants to फिर demonstrate. उसमें वो मोहब्बत नहीं है जिसको हम So जाहिर some कर सकते practical ways to love sacrificially. हैं। और जो अमली इकदाम है तो कि हम ऐसी मोहब्बत कर सकें जिसमें कुर्बानी हो। All right, we'll go through this quick and then we'll go. I know there's a game waiting for you guys. और मैं जो है जल्दी से इसको करूंगा, फिर आपके लिए एक और खेल इंतजार कर रहा है। All right. Glorify God in your marriage. खुदा के नाम को अपने अज़दवाज में जलाल दें। Now keep all the definitions in mind ये सारी जो है जो डेफिनेशन अपने जहन में रखिएगा that we glorify God कि हमने खुदा को जलाल देना when we है reveal God to others. जब हम खुदा को दूसरों पर जाहिर करेंगे। Are we understanding? क्या हम Are इसको we समझ- together? क्या हम कहते We हैं glorify God हम खुदा के नाम को जलाल देंगे when we reveal God to others. जब हम खुदा को दूसरों पर जाहिर करेंगे। We give glory to God हम खुदा के नाम को जलाल देंगे when we reveal God to others. जब हम खुदा को दूसरों पर जाहिर करें। And the first place this starts, जो पहली जगह है जिसका जहां It's से in our आगाज होता है, marriage. वो है हमारा अज़दवाज। godly marriage reflects Christ and His church. और जो मर्जी जो शादी जिस शादी में खुदा शामिल हो It reflects Christ. वो जो है मसीह को जाहिर करता Husbands glorify God है। जो शौहर है वो खुदा के नाम को जलाल देता है, by loving sacrificially. जो अपनी बीवी को कुर्बानी वाली मोहब्बत करने से। Is it Qurbani? ऐसी मोहब्बत जिसमें कुर्बानी शामिल Yes. To love your wife sacrificially. है। अपनी बीवी को इस तरह से मोहब्बत करें जिसमें कुर्बानी शामिल हो। Let me ask the husbands, मुझे जो है शौहरों से पूछने दीजिए, or you ask yourselves, या अपने आप से खुद पूछिए, when is the last time I sacrificed something for my wife? मैंने कब और किस वक्त जो है अपनी बीवी के लिए कुछ कुर्बान किया था। Amen. God bless you. आमीन, खुदावंद आपको बरकत दे। Because it's in that sacrifice क्योंकि इस कुर्बानी के अंदर that Christ is revealed. जो है वो खुदा बाप जाहिर किया जाता Hence, glory is given. है और जब उसको जलाल दिया जाता है। So you got to keep these together. Sacrifice, इसको आपको इकट्ठा रखने की जरूरत है। कुर्बानी जो है, glory जो जलाल है, is revealed जो जाहिर किया जाता है, through what we do. और हम जो करते हैं उसके When we वसीला- sacrifice for our spouse, husbands, जब शौहर अपनी जो बीवी के लिए कुछ कुर्बान we करते हैं, reveal to the world हम दुनिया को दिखाते हैं, who our Father is. हम दिखाते हैं खुदा बाप When कौन we है। lead humbly, जब हम आजिज़ी से चलते when we हैं, forgive quickly, हम जब जल्दी माफ कर when we देते serve her joyfully, हैं, जब हम खुशी से खिदमत it करते हैं, reveals the glory of the Father. ये जो है खुदा बाप के जलाल And को in the जाहिर same करता way, है। wives, और इसी तरह से when you respect your husband, जब जो बीवियों का भी इसी तरह से जब अपने शौहरों की इज्जत करती when हैं, they encourage their husband, जब उनकी हौसला अफजाई when करती they हैं, partnership with their husbands, जब उनके साथ इश्तराक when करती they're हैं, faithful to their husband, जो अपने शौहरों के they साथ are वफादार हैं, revealing who God the Father is. वो दिखाती हैं कि खुदा बाप कौन है। That's giving glory to God. ये जो है खुदा के नाम को I जलाल feel like देता I need to give more time to this subject. है। और मेरा ख्याल है कि मुझे इस मौजू पे ज्यादा वक्त चाहिए। Everything that we sacrifice for our marriage, और हर वो चीज जो हम अपने अज़दवाज के लिए कुर्बान करते हैं, it brings glory to God. ये खुदा बाप के लिए जलाल Let me लेकर say that again. आता है। मुझे दोबारा कहने दीजिए। Everything we sacrifice for our marriage, हर वो चीज जो हम अपनी शादी के लिए कुर्बान करते our हैं, rights that we sacrifice for our marriage, हमारे हक जो अपने our comfort that we sacrifice for our marriage, हमारा आराम, our independence that we sacrifice for our marriage, हमारी आजादी, it all brings glory to God the Father. और ये सब कुछ जो है खुदा Because बाप के लिए that जलाल है। reveals who God और is. क्योंकि ये जाहिर करता है कि खुदा बाप कौन है। Do you remember the prophet of the Old Testament named Hosea? क्या आपको याद है कि जो पुराने अहदनामा में जो एक नबी था If you जिसका नाम don't know, होशिया it's था, a wonderful story to read. यार अगर आपको नहीं पता तो ये एक बड़ी ही अच्छी कहानी है जिसको He पढ़ने की made जरूरत है। tremendous sacrifices for his marriage. और उसने जो है बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां The
Bible अज़दवाज tells के us लिए he दी। married a harlot. और बाइबल कहती है कि उसने एक जो है कसबी से He शादी की married a woman that had no respect in society. और उसने उस औरत से शादी की जिसकी कोई इज्जत माशरे में नहीं He थी। married a woman that was abused tremendously in society. और उसने उस औरत से शादी की जिसको बहुत ही बुरा भला कहा जाता था। He brought her into his home. वो जो है उसे अपने घर में He लेकर put a आया covering on her. और उसने उसको He married her. उससे शादी की He gave her his name. और उसे अपना नाम दिया He gave her status and report in the community. और उसने उसे रुतबा दिया, And she still ran out on him. लेकिन वो फिर भी वो भाग She गई still went out to other men. और दूसरों के पास चली And the गई। Bible says his sacrifice was such. लेकिन उसकी जो कुर्बानी है He went and brought her back again. और फिर जाके वो उसको वापस लेकर Now, आया। what do you think that was reflecting? और आपके क्या समझते हैं कि क्या Remember, चीज़ जाहिर करता है? Hosea was representing God the Father. और यहाँ पर जो है होसिया जो है वो खुदावन यीशु मसीह को Every खुदा बाप time को he जाहिर करता है। went and brought her back, और जब वो जाती और उसे वापस लेकर आता था it was reflecting what God the Father was doing for his वो people. इस चीज को जाहिर करता था कि खुदा बाप अपने लोगों के लिए That क्या कर even रहा though she was unfaithful, है। अगरचे वो जो है वो वफादार ना थी that he was still faithful. लेकिन वो जो है वो फिर भी And वफादार so, husband, when you are sacrificing for your wife, शौहरों जब आप अपनी बीवियों के लिए कुर्बानी देते and हैं wives, when you are sacrificing for your husband, बीवियों जब आप अपने शौहरों के लिए कुर्बानी when देते you हैं are staying pure and holy for one और another, जब आप एक दूसरे के लिए पाक ठहरते हैं you are reflecting the glory of तो God. आप जो है वो खुदा बाप का जलाल जाहिर करते हैं। Somebody say amen. कोई तो कहे आमीन। It's you. You got to walk with me on this. आपको मेरे साथ इसमें और आगे बढ़ना Let's पड़ेगा। keep going. हम आगे चलेंगे। Glorifying God in parenting. और खुदा के नाम को जलाल देना जब आप बच्चों की परवरिश करते हैं। As parents, we glorify God आप वालदैन होते हुए हम खुदा के नाम को जलाल when we देते pray with our children. हैं। जब हम अपने बच्चों के साथ दुआ करते हैं। Again, giving God glory is revealing who God is. दोबारा खुदा के नाम को जलाल देना यह है जब हम उसको जाहिर करते हैं। When you pray with your children, जब आप अपने बच्चों के साथ दुआ करते you हैं are revealing to them that there is an interceder who is continually interceding for us. आप जब अपने बच्चों के साथ दुआ करते हैं तो इस चीज को जाहिर करते हैं कि एक शफात करने वाला है जो लगातार हमारे लिए शफात करता है That's giving glory और ये खुदा के नाम को जलाल because you're देना। revealing the Father. क्योंकि आप जो है खुदा बाप को जाहिर That's करते what Jesus was saying, that by your good works they will glorify the हैं। Father. यही वो बात है जो यीशु कर रहा है कि अपने नेक कामों की वजह से आप Because खुदा के नाम those को works जलाल are going देंगे to unveil the person of the Father. क्योंकि वो काम जो है वो खुदा बाप पर से When पर्दा you're reading उठाएंगे। scriptures with your children, जब आप खुदा का कलाम अपने when बच्चों you're के साथ modeling पढ़ते हैं, forgiveness to your जब children, आप जो है अपने बच्चों के सामने when नमूना you're बढ़ते हैं living a consistent life, और जब आप एक लगातार जिंदगी गुजारते हैं it is revealing who God is. और वो जाहिर करता है कि खुदा बाप कौन है। The third is glorifying God in our work. और जो तीसरी बात है कि अपने काम पर खुदा के नाम को Colossians जलाल देना। 3:23, खुदा कुलसियों 3 बाब की 21 आयत में it लिखा says, है whatever you do, वो क्या जो भी करो do it full-heartedly और पूरे दिल से करो as for the Lord. ये जान करके खुदावन के लिए करते हो। No shortcuts. शॉर्टकट नहीं, No shortcuts. No jagad. थैंक यू। Because it reveals who God is. क्योंकि ये जाहिर करता है कि खुदा कौन है। And so whether you're a teacher, mechanic, nurse, business owner, whatever it is that you do, चाहे आप उस्ताद हो, मैकेनिक हो, आप नर्स हो या आप किसी कारोबार के your मालिक हो, work is the mission. It's the mission field to reveal who God the Father is. आपका जो काम है वो मिशन फील्ड है कि जिसमें आप खुदा And बाप so को you जाहिर- glorify God कि आप खुदा बाप को जलाल दो by your honesty, अपनी ईमानदारी से, by your excellence, अपनी जो है वो by your punctuality, अपने जो है पाबंदी से, by your kindness, अपनी मेहरबानी से, by your integrity, अपने जो है वो by your refusing not to gossip. और जो है इस बात से कि आप जो है वो When gossip ना people करें। see your work, जब आप लोग आपका काम देखेंगे they'll say, this man is different. कि वो कहेंगे कि ये शख्स जो है मुख्तलिफ है, This person is different. ये जो है बंदा मुख्तलिफ है। Who are they reflecting? कि ये किसको जाहिर कर रहे हैं, Who is reflecting off of their character? ये किसके किरदार को जाहिर कर रहे हैं। And the hope is that it is God. वो जो उम्मीद है वो है खुदा। And lastly, glorifying God through our everyday decision.
और आखिरी जो बात है कि खुदा के नाम को जलाल देना अपने रोज़मर्रा के Paul फैसले। ended this chapter by saying, whatever you eat or drink, पालूस रसूल जो इस बाब का अख्ताम करता है वो कहता है कि आप जो कुछ भी खाते और पीते हैं such ordinary activities. वो बहुत ही आम जो है वो सरगर्मी की तरफ वो We इशारा don't करता है। ever think about what we're eating or drinking. और हम सब जानते हैं कि हम क्या खाते और पीते हैं। No, we don't think about it. हम जो है इसके बारे में सोचते भी We नहीं, just eat. It's in the fridge, heat it up, eat it. बस हम निकालते हैं फ्रिज में से और खा लेते हैं। But he's like, even what you eat and drink, और पालूस रसूल कहता है कि यहाँ तक कि आप जो कुछ खाते और it's like पीते हैं, even the little details of your life, इवन यहाँ तक कि आपकी छोटी से छोटी जो जिंदगी की are they detail है, bringing glory to God? क्या वो जो है खुदा के नाम के लिए जलाल लेकर आती? Does it honor Christ? क्या वो मसीह यीशु की Will it ताज़ीम करती? strengthen someone? क्या किसी को मजबूत करता? Does this reflect God's क्या character? ये खुदा के किरदार को- Will it be a stumbling block? और या ये एक ठोकर खाने वाली बात है? Or will this point people to Jesus? और ये जो लोगों को जो और ये खुदा लोगों को खुदा यीशु मसीह की तरफ रागिब करता And so Paul ends this chapter है। जो पालूस है इस जो बाब का इख्तिताम करता है, by saying life is not ultimately about our rights. जो है वो कहता है कि जो जिंदगी जो है वो हमारे हकूक का नाम नहीं, It's about God's reputation. ये जो है खुदा के रुतबे के लिए है। It's about God's reputation. ये जिंदगी जो है खुदा के जलाल के लिए, It's about what glorifies God. ये यो है कि खुदा के नाम को जलाल दिया जाए। When our marriages reflect Christ, जब हमारी जो शादी है वो मसीह को जाहिर करती when है, our parenting points children to Jesus, हमारे जो बच्चों की परवरिश है वो हमारे बच्चों को मसीह की तरफ, when our works display integrity, जब हमारा काम जो है वो हमारी ईमानदारी को जाहिर and when करता है, our worship flows from a surrendered heart, और जब हमारी जो इबादत है वो हमारे जो है वो दिल से निकलती है, it gives glory to God. ये खुदा के नाम को जलाल देती है। Now let me end it on this one last verse. मुझे जो है इस आखिरी आयत पर ख़त्म करने दीजिए। Go to Acts 12:21. मेरे साथ निकालिए अमाल रसूलों के अमाल उसका 12 बाब और उसकी 21 आयत। So on a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat on his throne and gave an oration to them. When the people kept shouting, the voice of God, this is the voice of God and not of man. Then immediately an angel of the Lord struck him because he did not give glory to God. So see, all this praise is coming his way, and he's not reflecting it back to God. और हेरोदिस बादशाह, you want me to read in Urdu or this? Yeah. Okay. और बस हेरोदिस एक दिन मुकर्रर करके और शहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज़ है ना इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, और इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पर मर गया, Because he did not glorify God. क्योंकि उसने खुदा के नाम को जलाल ना दिया। In that moment when the praise came his way, और उस लम्हे जब जो जलाल है, तारीफ है उसकी तरफ आ रही थी, he didn't deflect it back to God. और उसने वो खुदा की तरफ लौटाई नहीं। There are many areas that you may be getting knocked down on. और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लम्हे और मौका हो जहाँ पर आपने ऐसा ना किया हो। And things are being eaten out of your life because you're refusing to give God glory. और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ें खा ली गई हों कि आपने खुदा के नाम को जलाल नहीं दिया। There are consequences for not honoring God. ये खुदा को इज्जत ना देने के कुछ नताइज हैं। We're called to glorify Him. हम बुलाए गए हैं कि उसके If we नाम are को जलाल saved, दें। अगर हम बचाए गए हैं, then our duty is that through our life the world will know Him. और हमारा फ़र्ज़ है कि जितनी देर तक हम इस दुनिया में हैं कि दुनिया जाने के खुदा कौन है। That through our living, हमारी ज़िंदगी through गुजारने के our वसीले, sacrifices, हमारी कुर्बानियों के through वसीले, our love towards one और another, हमारी मोहब्बत जो एक दूसरे through के our लिए है, surrendered heart, और अपने जो the शिकस्ता world दिल से, will see who God the Father is. और खुदा देखे कि And दुनिया if देखे we कि do खुदा not बाप move कौन है। in that, अगर हम उसमें नहीं चलते, then we may be having things eaten out of our lives. और फिर हम देखेंगे कि हमारी चीजों में से We कुछ may be खत्म हो getting जाएंगे, knocked down here and और there, हम देखेंगे कि हम इधर उधर जो है वो Just मार like खाते this फिरेंगे। man, और इस आदमी की who is तरह, refusing to deflect the honor back to और God. उसने जिसने खुदा को वापस उसकी जो जलाल है उसको वापस ना लुटाया।
It's important that we give God glory in ये all things. बहुत ही ज़रूरी है कि हम खुदा के नाम को इज्जत और सम्मान Everything that we have, loved ones, दें। अजीज़ों, कुछ भी हमारी ज़िंदगी में है, it ought to give glory to God. और वो सब जो है वो खुदा के नाम को जब Stand with me as we come closing in मेरे prayer. साथ खड़े हो जाइए जब हम इसको बंद करते हैं दुआ के साथ। Jesus. Thank you, Lord. Just take a moment even to examine your heart. If there are areas where you feel that God is not receiving glory, He's not far. He's not far. He's not far. Thank you, Lord. Father, we just bow in awe and thank you that you have given to us, Lord, your word, which is a light unto our path. Please, Father, we pray if there are areas in our lives that we have not yet understood to be means by which we can reveal you to the world, and help us to do so. And we'll give all praise to you in Jesus' name.